أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. My brothers and sisters, respected members of the bar, principal officers of Peshawar High Court, the district and session judges, judicial officers, officers of the district administration, police department, print and electronic media, and locals of Kogal and the Qasim, Udi and Kogal districts. Assalamu alaikum. On my behalf, on behalf of all my brothers, I thank you first of all for the warm welcome you extended to all of us. The tribute you paid and the eloquent words you spoke, it was all benefiting the rich traditions of this area. Ladies and gentlemen, we have gathered here today to commemorate the inauguration of the new judicial complex. It is a great and momentous occasion. Court buildings offer several perspectives. In a sense, like many other structures, they create a conducive working environment for judges, court staff, lawyers, and prosecutors. They provide essential amenities such as restrooms and washrooms for visitors, including witnesses and delegates. More profoundly, court buildings symbolize the greater and authority of the courts. However, the most crucial perspective is that of the courts as halls of justice where disputes are resolved. Rights are upheld, and the weak and vulnerable find solace and sanctuary. We are most concerned with this aspect. This perspective prioritizes the judicial perspective over all other interests. It is concerned with improving court processes to make them faster and more effective, and making courthouses more accessible. As litigants remain my foremost concern, I directed the planning and development wing of the Peshawar High Court immediately upon taking office as the Chief Justice to ensure the inclusion of essential facilities for litigants in all future projects. Regretfully, our courts have had difficulty fulfilling the constitutional requirement to deliver expeditious justice. Given the current numerical strength of judges, it would be unrealistic to expect miracles. 564 judges of the district judiciary cannot resolve 264,000 cases which are pending in the provinces, especially in 11 districts. That is the Central districts, Peshawar districts, the Haripur, Mansehra, Ahmedabad, then Ohad, then Dilhan. We have the 70% backlog is in these 11 districts, while we have 25% backlog in the rest of the province, in 25 districts. And 11 districts is having the backlog of through smart management. We are trying to work on that backlog. We are trying to decide the old cases, but there are so many impediments, and the main impediment in my view is that is the human resource, that is of the number of judges at the district judiciary level. Smart case management can be effective. We have concentrated on enhancing case management practices and have held several bench bar sessions to develop strategies for reducing backlog and improving case operation. The results have been impressive. In just 3 months, when I get the oath, thereafter I sensitized the bar to their cooperation and the cooperation of the judges, brother judges, the district judiciary. We brought this figure from 275,000 to 264,000 within last 3 months. Because institution is also there. In Ahmedabad, as per my information, the institution government is around 2,500 to 3,000 cases.
In Peshawar, we have 5,000 institutions around. Then in the other districts, Nowshera, Chasada, 2,000, 3,000, 4,000 institutions. But still, the trajectory or the graph is dropping or it is coming down. And inshallah, we will, with your cooperation, we will do it. We will successfully, at least we will clear the old cases which are pending in the distribution. Before I conclude, since the locals of the area are here and I will speak to them for their information and consumption. हम जजेस हैं, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम आवाम के खादिम हैं, आवाम के नौकर हैं. मैं एज ए चीफ जस्टिस आवाम का और उनका खादिम हूँ. जितने मेरे जजेस साहिबान हैं, जितने मेरे भाई हैं, हम इनके टैक्सों के पैसों से हम अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं. हमने इनकी इज्जत रखी है. हमने इनका ये खौफ दूर करना है. क्यों एक आदमी अदालत जाने से घबराता है? क्यों एक सिविलियन, एक आम बंदा थाने जाने से घबराता है? ये क्या वजह है? क्यों हम इस बात को समझ ना सके पिछले 75-76 साल में? ये हमारा कॉलोनियल माइंडसेट कब चेंज होगा? हम कब तक इनको सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करेंगे? दे आर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री. ये हमारे लोग हैं. मसाइल, इनके केसेस के फैसले मेरिट पर होंगे. जिसका हक बनता है उसको मिलेगा, लेकिन इनकी इज्जत सब दे रहे हैं. वो वकील साहबान हैं या हमारे जजेस साहबान हैं, इनकी बेटी की जगह होनी चाहिए. इतनी अफसोस की बात होती है कि हम सोफों पर बैठे होते हैं. वकील साहबान के लिए हमने सोफे लगाए होते हैं, इनको हमने हार्ड बेंचेस और पुरानी कुर्सियों पर बैठाया होता है. ये कौन सा तरीका है इन लोगों को? क्या ये कब तक चलता रहेगा? इसको खत्म होना है. इनको जहाँ भी ले जाए इंसाफ के बारे में, हाँ वो ताले जाए, हाँ वो तहसील जाए, हाँ वो कचहरी आए, अदालत आए, इनकी इज्जत हम सब पर फास है. मैं वैसे चीफ जस्टिस तमाम मैंने अपने जजेस को कहा है कि लिटिगेंट्स की इज्जत, लिटिगेंट्स का ख्याल रखें. ये आज तक वो अल्फाज हम यूज कर रहे हैं कि साहिब तो मांगने वाले को कहते हैं, ये तो अपने हक की नहीं आए. साहिब क्या है? फिक्री नहीं. अब ये नहीं होगा. अच्छे अल्फाज आपको कला साहिबाना की क्रिटिक्स में लाए. ये हमारे बड़े सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो यही है. इनकी वजह से हमारे सारा सिस्टम है. इसकी वजह से मैं चीफ जस्टिस बैठा हूँ, इनकी वजह से ब्रदर जजेस बैठे हुए हैं, इनकी वजह से हमारे वकालत का 25 साल मैंने आपके साथ प्रैक्टिस के गुजारे. हमने अपने हमारे बच्चों की तालीम में हमारे घर के खर्च इन लोगों की वजह से चल रहे हैं. लेकिन हम क्या रिस्पेक्ट देते हैं? मेरी ये गुजारिश है वकील साहब से भी, सबसे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, वो PNB हमारी है और CW है, और मैं जिधर भी जाता हूँ तो ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आज के बाद हमारे जितने भी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आएंगे, जज का चैम्बर विदाउट रिस्पेक्ट, वकील का चैम्बर कार्य होगा. पहले इन क्लाइंट्स के लिए, इन लिटिगेंट्स के लिए, इनकी बैठने की जगह, इनकी माशरूम्स की मुनासिब जगह, इनके लिए हम ऐसा माहौल कम से कम ऐसा करें कि ये आज की बाइज़त को सारा दिन बरामदों में हम इनको खड़ा करेंगे. गर्मियों और सर्दियों में 2:30 बजे कहते हैं ये आपकी तारीख हो गई, बची है अगली तारीख पर. ये ऐसा नहीं चल सकता. और जितने इसके अलावा मैं अपने जुडिशरी का देखते हूँ, जितने भी हम सारे पौधे सर्विस हैं, हम लोगों के बारे में हम हैं और हम अदालत की ताज़ीम, इदारे की ताज़ीम अपनी जगह है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं. लेकिन इनके यहाँ के फैसले और जल्दी फैसले होने चाहिए. इनको ना रखना चाहिए ज़्यादा, जितना हमसे हो सकता है. और ये आप करा सकते हैं, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल विदाउट इन्फॉर्मेशन. और आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं. मैं आपको बताऊँ कि जुलाई में फर्स्ट टाइम पेशावर कोर्ट की हिस्ट्री में हम 2 महीने छुट्टियाँ करते थे. इस दफ़ा मैंने छुट्टियाँ 25 दिन 1 महीना करी. मैंने कहा नहीं, 2 महीने छुट्टियाँ. और उस पर हमने स्पेशल बेंचेस बनाए प्रिंसिपल सीट पे, और तकरीबन 1200-1400 केसेस सिविल डिवीजन जो पुरानी हुई हुई थी
वो हमने निकाल लिए। इंटरनल ऑर्डर्स की केसेस पड़े हुए थे, मैं सूट पेंडिंग है वहाँ पर 10-10 साल से हमारे केसेस पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की तरफ से, पुलिस से, प्रोसिक्यूशन से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोगों की हम सिर्फ इंसाफ नहीं है, आप इंसाफ आप करना है, इंसाफ हम सब नहीं करना है। इंसाफ में भाई अपने बहन के साथ इंसाफ करना है, उसका हिस्सा देना है, क्यों वो अदालत है? बाप ने बेटे के साथ इंसाफ करना है, बेटे ने इंसाफ बाप के इंसाफ करना है, इंसाफ सब ने करना है, हमने अपनी ड्यूटियों के साथ इंसाफ करना है। लेकिन कम से कम ये मेरी मैं एज चीफ जस्टिस मैंने पहले भी अपने ब्रदर जजेस और सब जज साहबान को मुख्तलिफ औकात में कहा है कि मेहरबानी करें लिटिगेंट्स को इनकी इज्जत और उनका ख्याल रखें। फैसले जो हमने करने होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी जुडिशरी पर फख्र है, हम कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, और वो हाई कोर्ट हो, आइन और कानून के मुताबिक हम चलेंगे, और वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हो, आइन और कानून और अपने ज़मीन के मुताबिक फैसले करेंगे। उसमें हमारी कोई दो राय नहीं है और ना उसमें हमारी कोई इंटरफेरेंस है। सारे जज साहबान अपने फैसलों में आज़ाद हैं और अपने कानून के मुताबिक फैसला करें। वकला साहबान आप हमारे साथ इसमें हमारा साथ दें। ये काम आहिस्ता आहिस्ता कितना ज़्यादा होता जा रहा है। ये पेशावर में पिछले साल 60,000 FIR हुई, 60,000 FIR अगर डिस्ट्रिक्ट में होती है, उसमें 45 पुलिस स्टेशन हो, तो ये FIR तो किसी अदालत से गुजरती होगी, वो मर्डर केस हो, वो 506 हो, वो 11A हो, 9A हो, जो भी हो, लेकिन एक अदालत से, एक सिस्टम से गुजरना पड़ता है। तो लोगों की तकलीफ है, लेकिन हम अपनी एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स में हमारी कोशिश है कि हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हुई, वकला साहब से हमारी बात हुई थी, इसमें ज़रा आप देख के बात मसलन करें हैं बस कि हम इसमें हमारे पास आनी 101 सिविल जजेस की पोस्ट है, बच्चे तैयारी करें, आप लोग आपका फ्यूचर है, ये हम वकला साहबान प्लीज़ वर्क हार्ड, आप मेहनत करें। जो सहूलियात आपको मिली है, ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमें नहीं दी, हमें नहीं मिली थी ये सहूलियात। हम तो पर्टिकुलरली कुर्सियों पर और तड़ों पर बैठे थे, लेकिन काम करना पड़ेगा आपको। ये ऑनलाइन लाइब्रेरिया, ये चीज़ें हमारे ऊपर नहीं। आप यंग लायर्स हैं, इस सिस्टम का फ्यूचर है, आपने कल अच्छे बड़े वकील बनना है, आपने जज बनना है। अगर आप इसमें अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बदकिस्मती की बात है कि वो सारी चीज़ें सिर्फ में बाहर या बेंच नहीं, सारी चीज़ें ऊपर सवाल आ रही हैं, वो प्रोफेशनलिज्म लोगों का ख़त्म हो रहा है। दिल की बात आपसे शेयर की है, अपना ख्याल रखिएगा। ये बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इस बिल्डिंग से ज़्यादा अगर लोगों की इंसाफ मिले, जल्दी मिले और फौरी मिले, और तो ये बिल्डिंग जो है वो कारगर साबित होगी। अदरवाइज मेरे ख्याल में अगर दिल की उसकी तकलीफ हम कम ना कर सकें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ये चीज़ें जो हैं इनकी कोई हैसियत नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। सुना बारिश की कल रात को बहुत हुई है, एक जगह से शिफ्ट किया गया, यहाँ पर शिफ्ट किया गया। तमाम दोस्तों का, भाइयों का, इलाके से आने के लोगों का शुक्रिया। ढेर ढेर मेहरबानी। थैंक यू। आबाद और खुश रहिएगा। थैंक यू।